Yes, good morning, everyone. Yes, good morning. So, welcome to the IP class. Yes, yes, good morning. So, I expect that everyone is fine at home and taking care of your health and also help your family members. Clear? Excuse me, sir. Anji, Anji. Sir, today I'm facing some network problem. Can I keep my camera Okay, off? okay. Okay, कोई बात नहीं, लेकिन ये सभी को ना हो, that should not be the case, that the same problem is with everyone. So, two students I have permitted, Harshit and Shriya. So, yes, last we have started with the SQL and we are already familiar with the concept of SQL. Clear? Just we are going through the revision part and you can relax a bit also because many of the things you are already in control. So you know the things clear because we have focused a lot on in grade 11 also on the SQL side. Clear? And also in the meanwhile, you can focus on the topics, please, on the Python side. Remain in touch with the Python side because when you will be starting your project, so you need to be very good in on the Python front. Clear? So don't relax too much. And also, you have 15 days. So think of the topic for your project. Clear? We should not relax too much, and you should look for your topic. The topics are like I give you the idea like we go for analysis purpose. You know the pandas that is there in our syllabus that is used for analysis. So you can take any real life problem. There are so many websites are there on which huge amount of data is available, like data on medical side, data on population side, and different companies data also, industry side data. So huge amount of data is present on the net. So you can make a analysis based project also. I gave you the idea that you can go for the billing project also. Clear? You can go any real life project also, but 2 or 3 points should be there in your mind. That is, don't go for a that you have to use your time very cautiously. ये ना हो कि ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ के बैठ जाओ, पता लगे कि हमने बाकी पढ़ाई छोड़ दी है और प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करी जा रहे हैं. सो यू हैव टू मैनेज कि आप 15-20 मिनट डेली अगर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लो, और डेली भी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है. ठीक है? सो ये हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ये खत्म हो जाए. ठीक है? एंड ट्राई टू मेक सम रियल लाइफ प्रोजेक्ट. Clear? And wherever you need my help, so I will be available. Clear? And make something of the, चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो लेकिन थोड़ा सा वो रियलिस्टिक सा लगे. दैट इज डोंट पिक अप दी, जैसे ओल्ड प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बना दिया. ठीक है? सो डोंट गो फॉर द कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स, आइदर गो फॉर एनालिसिस प्रोजेक्ट. और जैसे आप किसी भी कंपनी के लिए बना सकते हो, जैसे कोई जीएसटी के रिलेटेड, ठीक है, कि कोई शॉप है जिसने अपनी जीएसटी फाइल करनी है, इनकम टैक्स के ऊपर बना सकते हो. ठीक है? इनकम टैक्स के ऊपर काम कर सकते हो. और बिलिंग के लिए अगर किसी होटल का बिल बनाना है और किसी एंटरप्राइज का बिल बनाना है, उसके लिए यू कैन गो फॉर दी this project in Python. Clear? And you will find that on net there is a numerous help is available. So try to use the how you can take the help from the internet also. And also मेरे हिसाब से तो अब आप इस सिनारियो में इंडिविजुअली बनाओ प्रोजेक्ट. डोंट गो फॉर ए टीम फॉर्मेशन. टीम की फॉर्मेशन, आप देखो टीम में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग है. एक बंदा अपने घर पे बैठा है, वो किसी और टाइम पे काम करेगा, दूसरा किसी और टाइम पे काम करेगा. So but still if you want to formulate the team, so you can formulate the team also. So I am expecting that after your summer break, uske after 1 week you should at least submit me the topic of your project that you want to go. Okay? So थोड़ा थोड़ा आप ये सर्च करते रहो साथ साथ. अगर हमें प्रोजेक्ट समर ब्रेक में बनाना हो तो बना सकते हैं, जब मर्जी बना लो. मेरे हिसाब से आज शाम को बना के खत्म कर दो. दैट्स नॉट ए इशू. मैं किसी को ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि आप, मैंने शुभ मुहूर्त निकाला हुआ है छुट्टियों के बाद और तभी शुरू करना है. सो यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम. क्लियर? तो ये तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि मोटी मोटी डेडलाइन है.
आप उस डेडलाइन से आगे ना जाओ, क्लियर, आप उससे पहले काम कर रहे हो, सो दैट नॉट इशू, क्लियर। और this is topic SQL, so we have already worked on this slide. Who will help me in revising this? Yeah, Shriya. Sir, SQL's full form is Structured Query Language, and it is used for accessing and modifying relational database. Like we can access some information through it, and it was developed at IBM Research Laboratory. And we have SQL for running the SQL. We have many other systems like MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, Microsoft SQL Server. तो आज के लिए एक आप होमवर्क नोट करो सारे। होमवर्क क्या है, बड़ा छोटा सा होमवर्क है। ये देखो, माई एसक्यूएल जो है ये ओरेकल का है, ये पोस्टग्री एसक्यूएल, ओरेकल तो हमें पता है ओरेकल कॉर्पोरेशन का, माइक्रोसॉफ्ट, ये दो सॉफ्टवेयर जो है अबाउट दी पोस्टग्री एसक्यूएल और एसक्यूएल लाइट, ठीक है। ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, यू हैव टू गेट दैट, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे DB2 है, अब DB2 क्या है, DB2 इज अ डेटाबेस दैट इज नाउ इट इज ऑफ IBM। तो हमें थोड़ा सा ना वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड। ये नहीं है कि हमने जो वर्ड वहां पे लिख दिया PPT के अंदर, बस बहुत बढ़िया सर इसको हम याद कर लें, क्लियर। सो गो फॉर अ बिट मोर एनालिसिस एंड प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट। मैं आई एम एक्सपेक्टिंग दैट you will take the lead, and tomorrow you will in the starting of the lecture will tell that postgre belongs to this one and SQLite belongs to this organization, ठीक है। So let's move to the next slide, and I expect that someone else will come in other than Vanshika, because now I have only 2 participating students, 3 students. S Taranjot, Aruman, Navdeep, Priyanshi, and then I have Saksham Rajput, then is Amneet. So few people are interested to basically get removed from the class. So देखिए रैंडम नंबर में किसका नंबर सबसे पहले आ जाता है। यस, मनत शर्मा। मनत, यस सर। ये है, ये 1 by 1 पॉइंट्स, 1 by 1 पॉइंट आपने पढ़ने हैं और 1 by 1 ये पॉइंट आपने एक्सप्लेन भी करने हैं कि इसका मीनिंग क्या है। Okay, sir. First is interactive language. This language can be used for communicating with the databases and receive answers to the complex questions in seconds. इसका मतलब है कि से SQL है, it is an interactive language, like we can जैसे लाइक हमने किसी बनाना हो तो हमें लाइक क्विक रिस्पॉन्स आ सकता है चलो चलो, I ask sorry for interruption, I ask a question here. Give me, this question is for whole of the class. Give me a example of a one interactive system. कोई भी एक इंटरेक्टिव सिस्टम की एग्जांपल दो। So let's see who is ready to answer. Yes, Vanshika is ready. The load always go to the 2 or 3 students. So we are here to participate in the class. Oh, we are now living in a competitive world. Harshita, Rajveer, Sukhman Kaur, Abhinandan, Ajay Pratap, Romika. Yes, Sukhman Kaur wants to say something. So word processor. Word processor, very good. So thanks for participating, and also keep your camera in the active state. And let's move to, yes, Vishwajit se पूछते हैं, Vishwajit, and I find his name is very very, now I get impressed by his name, Vishwajit. चलो विश्वजीत तो मेरे को लगता है कल क्लास में नहीं था। एंड लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन टू जैस्मीन कौर। So Python command prompt is also interactive.
yes, yes. So Python command prompt is also no, जो हम स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं, स्क्रिप्ट मोड, और दूसरा मोड होता है हमारे पास इंटरेक्टिव. वी हैव टू मोड्स इन पाइथन, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. हम जो काम करते हैं वो स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं. So there are interfaces also on which we work in an interactive mode. So that's, I consider that as a right example. Yes. Any interactive system example? Yes, Vanshika. Sir, I was also decided to learn for the Python. So ठीक है, जैसे उस आप बड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल पहले देते हो. यू सी अवर क्लास इज देयर. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हो. व्हाट टाइप ऑफ दिस सिस्टम इज? दिस इज ए इंटरेक्टिव सिस्टम. ये जो हमारी जूम क्लास चल रही है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द इंटरेक्टिव सिस्टम वी हैव. सो सिमिलरली हम क्या करते हैं, जब हम एसक्यूएल का यूज करते हैं तो हम एसक्यूएल में लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, तो वो आगे से हमें रिस्पॉन्ड बैक करता है, दैट इज दिस इज द डाटा यू आर लुकिंग फॉर. हम क्रिएट स्टेटमेंट रन करते हैं, हम इंसर्ट स्टेटमेंट रन करते हैं, तो नीचे लिखा आ जाता है, या तो एरर आ जाएगा या हमारा जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगा दैट यू हैव क्रिएटेड द टेबल, यू हैव इंसर्टेड वन रो, लाइक दिस वी गेट द मैसेज. तो वो जो मैसेज हमें आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, हम सिस्टम से बात कर रहे हैं, सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है. व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज आल्सो इंटरेक्टिव सिस्टम, क्लियर, where we are interacting with the help of that the media that we use or app हम use कर रहे हैं WhatsApp. These are the few examples of the interactive system that we are discussing. So SQL is a interactive language. Yes, Manoj, second point. Multiple data views. The users can make different views of database structures and databases for the different users. तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है, व्यूज का जो कंसेप्ट होता है, we use it for security purpose. ठीक है. मैंने कल, मेरे को लगता है मैंने दूसरी क्लास में बता दिया, मैं might have discussed. So let's, I will move the paint here, और पेंट में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये व्यूज कैसे काम करते हैं. बिकॉज नाउ वी हैव ये व्यूज वगैरह जो है, हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ है, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. ये थोड़ा एडवांस टॉपिक्स में आता है ये व्यूज. सो हाउ द व्यूज वर्क्स here basically. ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या है, that this is the database I have. ठीक है, यहां पे मैं क्या क्रिएट करता हूं, I create certain views. तो व्यूज कहां से बनते हैं, व्यूज का जो सोर्स होता है, these are the views I have created and these views are created from the database. ये database से क्रिएट होते हैं. ठीक है. Now question arises कि ये व्यूज क्रिएट कैसे होते हैं. मैं एक क्वेरी रन करूंगा और उस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा उससे एक व्यू बन जाएगा. ठीक है, जैसे लेट्स से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप बैंक में काम कर रहे हैं, तो बैंक में क्या होता है, आपकी जो भी जॉब है, तो आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते बैंक के अंदर. आप पता लग जाएगी, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो आप बाकी सभी की सैलरी देख लो, यार इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, इसको इंक्रीमेंट कितनी लगी है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर हिडन फ्रॉम यू. तो वो हिडन कैसी होती हैं, दैट इज कि मैंने यहाँ पे मेरे टेबल के अंदर एक टेबल है, उसके अंदर मेरे पास 20 एट्रीब्यूट्स हैं. आई हैव 20 एट्रीब्यूट्स. लेट्स से इन मे बी HR टेबल है, HR का टेबल बना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स का. तो मैं चाहता हूं यहाँ पे जो यूजर जो व्यू बना है, व्यू 1, उसमें सिर्फ 5 एट्रीब्यूट दिखे, यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट दिखाई दे, मींस यहाँ पे सिर्फ 6 एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन दिखाई दे. आई वांट टू हाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन. और दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई यूजर जो है, यहाँ पे जो यूजर बैठा हुआ है, वो जो आप व्यू में कोई भी चेंज करते हो, दैट डज नॉट गो टू द टेबल आल्सो. ठीक है, अगर कोई यूजर व्यू में चेंज करता है तो वो चेंज जो है वो टेबल में जाके चेंज नहीं होगा. ठीक है, अगर लेट्स से किसी यूजर ने गलती से व्यू का डाटा डिलीट कर दिया, तो मेरे टेबल में कोई चेंज नहीं होगा, टेबल में मेरा डाटा एज इट इज पड़ा रहेगा. सो दिस बेसिकली दिस कंसेप्ट, जो व्यू का कंसेप्ट है, ये सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं और राइट्स के लिए एक्सेस करते हैं. जैसे अगर आप बैंक के अंदर लोन के लिए काम कर रहे हो,
तो यू कैन नॉट सी दी एफडी पार्ट। जो एफडी में लगा हुआ है वो लोन नहीं देख सकता। अब लोन के आगे फर्दर बाइफर्केशन होती है, कोई कार लोन में लगा हुआ है, कोई हाउसिंग लोन में लगा हुआ है। तो ऐसे क्या होता है, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो हर एक यूजर को डिफरेंट डिफरेंट राइट्स मिले होते हैं। हर किसी को सेम राइट नहीं होते। जो मैनेजर होता है बैंक का, उसको ज्यादा राइट्स मिले होते हैं, ही कैन सी मोर थिंग्स। ठीक है, जो मैनेजर के ऊपर बंदा बैठा होगा उसके पास और राइट्स होंगे, जो उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है उसके पास और राइट्स होंगे, जो आईटी टीम में बैठा हुआ है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स होंगे। तो ये जो राइट्स बनाते हैं उससे क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल दी सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए ऑल दीज थिंग्स आर डन। और उसमें व्यू जो है हमें दे हेल्प इन बेसिकली इंप्रूविंग दी सिक्योरिटी लेवल। और दी यस थर्ड पॉइंट मनत। Portability. SQL can be used in the program in PCs, servers, laptops, and even some of the mobile phones, and even on different DBMS softwares. So here in this point, basically we are talking of two types of portability. One is related to devices and the other is related to different softwares. Now SQL, जैसे हमने previous slide के अंदर देखा, तो SQL देखो, SQL कहाँ पे SQL MySQL में भी यूज हो रही है, Postgre में भी यूज हो रही है, Oracle में भी, SQLite में भी, SQL Server में भी. So these are the different DBMS which are using the SQL. तो ये बात होगी सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी। और मैंने कल भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि देयर आर मोर देन 100 DBMS इन दी मार्केट। कोई ग्राफिक्स बेस्ड है, कोई डॉक्यूमेंट बेस्ड है, कोई कॉलम बेस्ड है, कोई RDBMS बेस्ड है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। सभी के अंदर टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, बट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ DBMS which are there in the market. And basically जो हम DBMS पढ़ते हैं, इसके बाद आप बता सकते हो कि हम किस तरह की जॉब कर सकते हैं, विच टाइप ऑफ जॉब्स वी कैन लुक फॉर। अगर आपने अच्छा DBMS की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तो आप किस तरह की जॉब के लिए यू कैन गो फॉर, व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू कैन। डाटा साइंस मे बी पार्शियली, नॉट इन दैट। क्लर्क भी बन सकता हूं। और नहीं यार, क्लर्क नहीं बनना है। ये जिसको DBMS में अच्छा काम आ गया ना, DBMS इज नो, मैंने आपको बताया था कि एक तो ये पॉइंट है DBMS के केस में कि नो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें IT का यूज हो रहा है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए DBMS। उस कंपनी में चाहे जो भी फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई भी कंपनी है, वो DBMS के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। क्लियर? So DBMS is very crucial to every organization. My question is again, I am asking कि DBMS में काम करके हम किस तरह की जॉब के लिए we can look for that this is the job after having a good command over the databases I can go for job. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब प्राइमरी की लगाते हैं तो प्राइमरी की का डिसीजन कौन लेता है? DBA. So DBA is the post. DBA की फुल फॉर्म क्या है? Yes, Muskan will tell. Muskan. The database administrator. Yes, so this is the full form of DBA, database administrator, and this is a very competitive job. और DBA की जॉब जितने ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो बेसिकली एक कंपनी में एक DBA होगा, वहां पे 50 DBA नहीं होंगे, एक ही DBA होगा। एक या दो बड़ी कंपनी में हो सकता है मल्टीपल DBAs में भी देयर। Clear? But DBA's post is very challenging job also, and plus no you can say अगर हम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, so you can draw a big salary if you are working as a DBA in the company. So this was the basic about this point was about the portability. और एक तो हमारे पास सॉफ्टवेयर की पोर्टेबिलिटी होगी, दूसरी हमने डिस्कस की थी डिवाइस पोर्टेबिलिटी। क्लियर? So yes, Manat, go to point number 4. No coding needed. It is very easy to manage the database system without any need to write the substantial amount of code by using the standard SQL. हाँ जी, यस, आप ही एक्सप्लेन कर दो इसको। सर ये कि इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, हमें मतलब यूजर मतलब बिल्ट इन मिला हुआ है, so we can use it easily and assess it. Yes, so this is quite user friendly, so we don't need a very heavy coding is required with just statements
and we run the few statements in SQL. Yes, next. Well-defined standards long established are used by the SQL database that is being used by ISO and ANSI. There are no standard adhered by the non-SQL databases. So, there are basically two types of databases we have: SQL based databases and non-SQL based databases. So the non-SQL databases are, they do not follow any rule and like they are not controlled by any organization. But जो SQL based databases हैं, like we have seen in the list, clear? तो वो सारे जो हैं, they are basically, they work under ISO, that is the organization, International Standard Organization, and we have NC also, American National Standards for, क्या है NC की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? American National maybe Standard Code Information Interchange, like this sort of, this full form is there. So this is a one more body is there that controls the standards of SQL. So these the points that we discussed yesterday. So then we discussed about the MySQL is currently the most popular open source database. Open source means this is freely available and we don't have to go for any license. There are two platforms are there. One is LAMP platform and other is XAMPP platform. So XAMPP platform is the platform that we are using, and जो XAMPP platform है ये Windows user के लिए है, और जो LAMP platform है that is for Linux based users के लिए. ठीक है? Then we discussed this portability. We have already discussed security is very, very important, and we maintain it with the help of passwords. Connectivity is done with the help of the APIs, and it contains this query language. So we have already worked with this query language also. So yesterday we were focusing about the different types of SQL commands. So here we have created 4 different categories. First is the DDL category. So let's ask someone who is ready with the DDL. तो हमने already grade 11 में हमने इसके ऊपर काम किया है, and we have discussed it yesterday also. So yes, Muskan, 12F. So DDL stands for Data Definition Language and is used to create the database and the structure of the table. Yes. ये जो 3 कमांड है, ये बता सकते हैं किस किस के लिए यूज होती है? क्रिएट किस लिए यूज होती है, अल्टर किस लिए यूज होती है, और ड्रॉप किस लिए यूज होती है? So create basically used to create the database or the table, and alter is used to rename the table, and drop is used to delete a database of the table. Okay, thank you. Someone else who wants to give another reply on create, alter and drop statement one by one. एक create बतानी है, फिर उसके बाद alter बतानी है, फिर उसके बाद drop statement बतानी है. So very few people are left with camera. Rest, I don't know where they are enjoying. So it's time that few people are kept out of the class. Yes, someone is ready to reply or not? Easy question है जो अभी इसने बताया मुस्कान ने. हाँ जी, भव्या. So the create statement is used to create a new database or a new table, and then we have alter. Alter is used to change the name of, or we can say to add a new attribute, constraint, or change the primary key. Means there are a lot of examples of these. And drop is used to delete the content, to delete the table, the entire table along with its structure. So that is about these 3 statements that we have. So basically these all statements are they deal with the structure. Create आपको पता ही है, टेबल क्रिएट करने के लिए. अल्टर जो है, अगर हमने कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, उसके लिए अल्टर स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं. किसी कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना है, उसके लिए भी हम अल्टर को यूज कर सकते हैं. अल्टर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल स्टेटमेंट.
देन ड्रॉप से क्या होता है, ड्रॉप से हम पूरे पूरे टेबल के कंटेंट्स एज वेल एज स्ट्रक्चर दोनों को हम डिलीट कर सकते हैं. Then we move to the DML, data manipulation language. So anyone interested to say something about this DML? So only one student is there. 1 2 3. यहीं पे सीरीज ये खत्म हो जाती है हमारी 1 2 3 के बाद. 4 5 6 नहीं आता हमारी क्लास में कभी. Yes, Muskan 12F. So DML stands for data manipulation language and is used to do some manipulation and changes in the data of the table. We have here select command that is used to assess the table, and insert that is used to add a row in the table, and delete that is used to delete the rows from the table, and we have last command that is update that is used to update the data or do some changes. Okay. So basically for manipulation means how we update the data with the help of insert, delete and update. Basically yes, select statement is technically is not part of this, but it has been mentioned here. Okay, now we move to the data control language. So now data control language में दो statement mention की हुई हैं, grant and revoke. ये grant and revoke हमने कभी use नहीं की हुई. We have never used grant and revoke, but still we should know the basic about the this data control language. Grant जो है वो rights देने के लिए है, किस user को कितने rights हमने provide करते. तो ये multi user environment में काम करेगा ये. ठीक है, हम तो single user environment में काम कर रहे हैं. मल्टी यूजर मीन्स कि जैसे आई एम एक्टिंग एज ए डीबीए और आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हो, तो मैंने किस स्टूडेंट को कौन कौन से राइट्स देने हैं, सो दैट आई विल गिव विद द हेल्प ऑफ ग्रांट स्टेटमेंट. और जिस स्टूडेंट से मैंने राइट्स वापस लेने हैं या कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए मैं कौन सी स्टेटमेंट यूज करूंगा, रिवोक. सो रिवोक इज टेकिंग बैक द राइट्स विच आई हैव गिवन टू एनी यूजर. लास्ट पे है हमारे पास दैट इज वी हैव द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. सो विल बी टेकिंग द लीड हियर. 3 स्टेटमेंट है इसमें, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट. तीनों के ऊपर एक एक लाइन बतानी है ये क्या काम करती है. Yes. So this is very dangerous statements these are. No one is interested to respond back. Yes, Vanshika. सर कमिट का मतलब होता है कि जो हमने डाटा क्रिएट किया है उसको सेव करने के लिए होता है. ये खुद ही वो कर देता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती. और रोल बैक फॉर एग्जांपल हमने कोई डाटा सेट जो है वो एग्जीक्यूट किया है, फॉर एग्जांपल हमने 3 रोज इंसर्ट किया है, वो हम नहीं चाहते तो हम रोल बैक यूज कर सकते हैं और वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा. सर सेव पॉइंट जो है वो रिकवरी के लिए यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 2 आवर्स के बाद सेव पॉइंट लगाते हैं तो वो रिकवरी के लिए फॉर एग्जांपल यूज होता है. हमारा डाटा अगर हैक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो, या फिर डिलीट हो जाए तो वो सेव पॉइंट जो है वो उसको रिकवर करने के लिए हेल्प करता है. यस, वेरी गुड. तो कमिट स्टेटमेंट सिंपल सी बात है, जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने रन की हैं, उसको सेव करने के लिए. सिंपल इज दिस वन. एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली फायर्ड इन DBMS. सो हम ये कमिट कभी हमने यूज ही नहीं की, तो ये सेव करने के लिए. दूसरा जो डिस्कस किया रोल बैक. आप मेरे को कोई रोल बैक की एग्जांपल बता सकते हो? मे बी आउटसाइड द DBMS. आप DBMS से बाहर कोई रोल बैक की एग्जांपल आपने कभी, और आप में से सभी ने यूज की हुई है रोल बैक. आई एम सेइंग एनी एग्जांपल टू रोल बैक. कोई इससे मिलती जुलती एग्जांपल पता है किसी को? जैसे हम वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो अंडू करते हैं. अंडू के बारे में पता है सभी को? यू नो अबाउट अंडू. ठीक है, तो सिमिलर टास्क इज देयर. मैंने एक काम किया है DBMS में, बट आई हैव रन ए पार्शियल स्टेटमेंट. जब तक मैं किसी स्टेटमेंट को सेव नहीं कर रहा और मैंने पार्शियल एग्जीक्यूट हुई है, मेरे को लगता है ये ट्रांजैक्शन जो है, आई हैव बीन एबल टू रन दिस ट्रांजैक्शन पार्ट. मैं देखो ट्रांजैक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं. आई एम नॉट वर्किंग अबाउट दिस क्रिएट और इंसर्ट और दीज स्टेटमेंट्स. ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने काम नहीं किया हुआ है. आई विल गिव यू दैट वी कैन डिस्कस दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ. सो आई विल जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल डिस्क्राइब यू ये ट्रांजैक्शन होती है.
तो ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं आपका। चलो ये डिस्कशन जो है हम ट्रांजैक्शन के ऊपर ले जाते हैं। कोई मेरे को ट्रांजैक्शन की एग्जांपल बता सकता है रियल लाइफ में से? आप देखो कितनी ट्रांजैक्शन आप करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, बाजार में जाके फ्रूट वेजिटेबल बाई करते हो एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स यू बाई। सो हाउ यू विल डिफाइन ए ट्रांजैक्शन? यस एनीवन? यस वंशिका? So for example, अगर हम रियल लाइफ से लें तो अगर हमने कोई सामान परचेज किया फॉर एग्जांपल किसी शॉप से, तो जब हम उसकी पेमेंट, हमने सामान परचेज किया और जब हम उसकी पेमेंट कर देते तो दैट इज नोन एज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन को हम लेके चलते हैं, बेसिकली इट हैज टू कंपोनेंट्स। व्हेन वी आर पेइंग द थिंग्स, और दूसरा व्हेन वी आर गेटिंग द, ठीक है, जो भी हमारे पास वो प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास जैसे लेट से मैंने ऑनलाइन कोई चीज बाई कर दी और मैंने वहां पे पेमेंट कर दी, उसको पूरी पेमेंट कर दी उसको पहले, ठीक है, प्रोडक्ट तो मेरे पास 3-4 दिन बाद आएगा, उसी दिन तो आएगा नहीं। और लेट से 4 दिन बाद या आता ही नहीं है मेरा एड्रेस, उसको एड्रेस ही नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? दिस इज एग्जांपल ऑफ ए इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा अभी तक, क्लियर? तो वो क्या करेगा, वो 2-4 दिन चक्कर लगाएगा, फिर वो क्या प्रोडक्ट वो वापस कर देगा अमेजोन को, जहां से भी वो प्रोडक्ट आया, एंड देन दे विल बेसिकली पे बैक माई मनी आल्सो, जो भी मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट की हुई। अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आता, सो दैट इज नॉट ए कंप्लीट ट्रांजैक्शन, क्लियर, एंड द मनी विल बी गो बैक टू माई अकाउंट आल्सो। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रोल बैक, ठीक है, ये रोल बैक की एग्जांपल है। ट्रांजैक्शन तो पूरी हुई नहीं, मैंने पेमेंट कर दी और दूसरी साइड से उसने मेरे को प्रोडक्ट नहीं दे दिया, या आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, आप आगे से पैसे नहीं दे रहे, तो 2-4 गालियां निकालेगा वो आपको और बोलेगा मेरा प्रोडक्ट वापस कर दो, आप पैसे नहीं दे रहे। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऐसे। ये तो एग्जांपल वैसे कोई खतरनाक ही ज्यादा, बट यू शुड नो द एग्जैक्ट जो डीबीएमएस में टेक्निकल डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन की, व्हेन द टू प्रोसेसेस आर नॉट ओवर। एक ट्रांजैक्शन है जो हम बाई के लिए कर रहे हैं और दूसरा जो हमें प्रोडक्ट वापस मिल रहा है। So both the steps are done, we say that transaction is complete. और अगर दोनों में से कहीं पे भी कोई गड़बड़ है, so then we have to go with the rollback step, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन वाला अगर टॉपिक आएगा तो we will discuss this very interesting sort of a topic। जैसे you can go for जैसे आप एटीएम की एग्जांपल ले सकते हो। आपने एटीएम में वो अपना कार्ड डाला, ठीक है, ट्रांजैक्शन का वो डाला उसमें पैसे, और कई बार एटीएम से पैसे ही बाहर नहीं आते, ठीक है, तो उस केस में हाउ टू यू अप्लाई फॉर दी मनी? यस, कोई बता सकता है उस केस में क्या हमें करना चाहिए? वैसे तो 95% क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका वो जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसको पता है दैट इज ये डिलीवर नहीं हुआ। बट स्टिल इफ दैट डजंट हैपन, देन यू हैव टू गिव ए रिटन एप्लीकेशन टू योर बैंक, एंड देन दी बैंक विल प्रोसीड फर्दर। वो फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वेदर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई, ठीक है। जब इस तरह की ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन, मेरे को क्या पता चलेगा? आपको, आप बैंक मैनेजर हो या कोई और हो, आप वट एवर यू आर वर्किंग इन ए बैंक, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन उसको पैसे निकले या नहीं निकले? कोई बता सकता है इसके बारे में? देखो एक्चुअली आपको पता होगा, जैसे जब भी हम, जो पर्सन एटीएम में जाता ना, एटीएम में, जैसे एटीएम में आपने आज, यू आर ए मैनेजर ऑफ ए बैंक, आपने जो पर्सन भेजा उसको 5 लाख का कैश दे दिया, आपने उसको 5 लाख का कैश दे दिया कि जाओ इसको एटीएम में डाल दो। तो जो पर्सन एटीएम में जाके वो कैश डाल देगा, एक एटीएम का अपना अकाउंट होता है, जो एटीएम है एक उसका अपना अकाउंट होता है, उसको भी एक अकाउंट नंबर मिल जाता है। अब लेट से एक पर्सन गया, उसने 20,000 बोला कि 20,000 आई एम विड्राइंग 20,000 आई एम विड्राइंग फ्रॉम दी एटीएम, ठीक है जी। तो उस पर्सन के तो वो एटीएम से पैसे बाहर निकले ही नहीं। जब वो एटीएम से पैसे बाहर नहीं निकले तो वो पैसे कहां पे चले गए? बताओ, वो पैसे कहां चले गए? जो उस एटीएम को नंबर मिला होता है उसमें। बेसिकली तो सिंपल सी बात है, वो एटीएम के अंदर ही रह गए वो पैसे।
जब वो एटीएम के अंदर ही रहेंगे तो बेसिकली वो एटीएम वाले अकाउंट में चले गए, जो एटीएम का अपना अकाउंट है उस एटीएम में वो चले गए। अब शाम को जो मैनेजर है व्हाट ही विल डू, वो चेक करेगा। जैसे आपको तो कॉमर्स वालों को ज्यादा पता है, नो वी हैव बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट को वो वेरीफाई करेगा। अब वो देखेगा कि एटीएम से निकले तो इतने पैसे हैं बट एटीएम का बैलेंस तो ज्यादा शो कर रहा है, तो इट मींस देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव गॉन नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो एटीएम का बैलेंस ऊपर चला जाएगा और जो कस्टमर का बैलेंस मिसमैच चल रहा है उसके साथ वो क्या कर देंगे, उसको बाद में रीट्रांसफर कर देंगे इनटू द कस्टमर अकाउंट, क्योंकि मेरा जो एटीएम का बैलेंस है वो बढ़ गया है और जो कस्टमर है बेचारा उसको तो पैसे मिले नहीं है। सो देन दे विल मेक दे हैव अ मैकेनिज्म हाउ टू सॉर्ट आउट दिस प्रोसेस। So we have discussed a bit about the transactions, how this rollback basically happens, और save point के बारे में अभी वंशिका ने बताया that this point is related to the recovery process। ठीक है, इसको हम सेव पॉइंट भी बोलते हैं और कई जगह इसको चेक पॉइंट बोलते हैं। तो चेक पॉइंट क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट तक मेरा जो डाटा है सारा, जब वो चेक पॉइंट से क्रॉस कर जाता है तो वहां तक का सारा डाटा जो है आई कैन बेसिकली रिट्रीव कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक घंटे का चेक पॉइंट लगाया तो जितनी भी ट्रांजैक्शन अब 11 बजे तक हुई है वो सारी सेव हो जाएंगी। जब 12 बजेंगे तो 12 बजे तक जितना भी काम हुआ इस डाटाबेस के अंदर वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगी, दे आर रिकवरेबल। अगर 12:20 पे मेरा डाटाबेस क्रैश करेगा तो 12 बजे तक मैं सारी ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ माय सेव पॉइंट आई विल बी एबल टू रिकवर। तो ये रिकवरी के लिए ये कंसेप्ट यूज होता है। सो आई थिंक टुडे वी हैव जस्ट री-एम्फसाइज द पॉइंट्स एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द डाटा टाइप्स एंड वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल आल्सो। कोई आपका क्वेश्चन है इसका? So try to relate whatever the concept you study, maybe not in this subject, wherever you study, try to relate it with the real life. अगर आप जितना थोड़ा रियल लाइफ के साथ उसको जितना क्लोज ले जाओगे, so you will be able to basically understand it in a better way. Yes, so today we have attendance also 12A में से कोई है student from 12A? Harshit is there, Romika, then 12B, Bhavya. So Bhavya, you are back after few days. Break पे चले गए थे आप? Sir, actually yesterday I was not at home, and on Saturday my network connection was very weak. Okay. And then we have 12D. 12D, Vanshika, Priyanshi, and Tarunjot. Then we have 12E, Harshita and Aruman. And from 12F, Jasmine, Muskan, both the Muskans are there. Okay. So anyone else? Manat Sharma? Manat, Yes, yes. yes. Okay. कोई किसी की मेरी लगा दी ना? अजय प्रताप लगा दी भैया। हर्षित जैन, हर्षित जैन की भी होगी। हर्षित जैन मैंने सबसे पहले बोला था नाम। यस, कोई किसी की क्वेरी है? एनी क्वेश्चन यू हैव? सो एवरीवन इज। सर, हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है या फिर जो होमवर्क के लिए प्रोग्राम्स हैं हॉलीडेज होमवर्क के लिए, वो हमने सॉफ्ट कॉपी बनानी है या हार्ड कॉपी? सॉफ्ट। अभी तक कुछ भी हार्ड नहीं करना आपने। जब तक आपका प्रैक्टिकल पास नहीं आ जाता तब तक कोई भी हार्ड कॉपी नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है? हार्ड के लिए क्या है, when we are ready with the soft copy, so we can take a print in 1 or 2 days. तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट की तो बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि प्रोजेक्ट को तो लास्ट टाइम पे एक बार देख के रन करके फाइनल करेंगे उसको। और प्रैक्टिकल फाइल का भी ऐसा ही है। और समर जो आपकी वेकेशन का होमवर्क है वो भी सॉफ्ट में ही बनाना है। यू नीड टू बेसिकली कैरी, यानी देखो हमने प्रोग्राम्स ही बनाने हैं उसके, तो प्रोग्राम्स यू कैन बेसिकली रन ऑन द सिस्टम एंड मेंटेन द सॉफ्ट कॉपी। Okay, sir. Thank you. Thank you ji. Thank you very much for joining the session and have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.